Friends, already we have discussed limits. Limits are the two extreme permissible sizes between which the actual size is contained. Tolerance, we know that it is the maximum permissible variation without degrading performance. Fundamental deviation, already we have discussed, that is, it is the upper deviation or lower deviation, which one is closer to zero line. For whole basis system or for whole, lower deviation is the fundamental deviation as it is closer to zero line. That's why in whole basis system the minimum size of whole is equal to basic size. Basic size, we have discussed that it is the size in relation to which all limits are varied. Shaft के लिए upper deviation is a fundamental deviation. We already discussed there are whole basis system and shaft basis system. As far as your syllabus is concerned regarding numericals, whole basis and clearance fit, these are the basis for numericals. In whole basis system, size of the hole is constant and we are going to vary the sizes of the shaft. In shaft basis system, size of the shaft is constant and we are going to vary the sizes of the hole to obtain various types of fit. In clearance fit, size of the shaft, or rather in detail we can say, the minimum size of the shaft is always smaller than, the maximum size of the shaft is always smaller than minimum size of hole. इससे उल्टा रहता है इंटरफेरेंस फिट में, that minimum size of the shaft is always greater than maximum size of the hole, and in between these two transition fit. हमारा यह टॉपिक नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा. Already we have discussed, these are the plug gauges to inspect the dimension of the hole. These are the ring gauges to inspect the dimensions of the shaft. Rather we can say these are the gauges which are helpful to find out whether the part should be accepted or rejected. Today we discussed another problem of go gauges and no go gauges. Size is as you see 50 H7D8. Already we have discussed 50 is the basic size. Basic size means in relation to which all the dimensions are going to change. H is capital, that's why it is whole. D is small, that's why it is a shaft. H quoted first, it is a whole basis system. In whole basis system, already we have discussed, the lower deviation is a fundamental deviation. Therefore, minimum size of hole is equal to basic size, and minimum size of hole is equal to 50. Now H type of hole, it is having tolerance grade 7. D type of shaft having tolerance grade 8, and this shaft gives clearance fit. Now first of all we see this dimension 50, it lies in a diameter step of 30 to 50. Okay, now with the help of this table we come to know this dimension 50, it lies in a diameter of 30 to 50 and 50 to 80. Now we need to take diameter step of 30 to 50 because ये 50 में ऊपर क्या लिखा है, up to and including, and ये dimension है 30 to 50 up to and including, ये 50 above है. That's why we need to take this particular diameter. In last lecture already we have discussed, if you take 50 to 80 it is wrong because यहाँ पे लिखा है over, यानी 50 के ऊपर के आएंगे, whereas our dimension is 50. That's why it is 30 to 50. Now 50, it lies in a diameter step of 30 to 50. That's why D1 is 30, D2 is 50. Therefore capital D, that is geometric mean of two particular diameter step, is under root of D1 D2. ये आपको मिल जाता है capital D geometric mean under root 30 into 50, it is 38.7 mm. Already we have discussed this geometric mean or capital D, it is always in mm. Now next we need to find out the tolerance unit I. Formula आपको पता है, that is 0.45 cubic root of D plus 0.001 D. ठीक है, इसमें हम D की वैल्यू रखेंगे, आपको मिल जाता है I. It is 1.56. Friends, remember tolerance unit I, it is always in microns. So immediately मैंने यहाँ पे by default लिखा, immediately we need to convert it into mm. So आपको I मिल जाता है 0.00156 mm. Now already we have discussed, as it is a whole basis system and this D type of shaft gives clearance fit. आपको पता है whole basis system fundamental deviation is lower deviation,
therefore fundamental deviation is equal to basic size is equal to minimum size of hole, that is 50. Now this H type of hole is having tolerance grade of 7. So as we know that the tolerance grade is 7, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 7. So IT7 की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? With the help of 16i. So from table we know that the value of IT7 is equal to 16i. I हमने पहले निकाला है, तो आपको होल टॉलरेंस मिलेगा 0.0249 mm, क्योंकि I हमने mm में लिया है. Now already we know that the minimum size of a hole is equal to basic size, which is given in the problem, is 50. Now friends, just a minute, we'll see this figure particular. Okay, यानी इनिशियली आपको ये फिगर निकालना है, ये स्टेप के बाद यानी समझने में आसानी जाएंगी. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस इज़ नॉट फाइनल फिगर, ये आपके समझने में आसानी होनी चाहिए करके. यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बेसिकली यहाँ पे आपको निकालना है द वेरियस लिमिट्स ऑफ होल एंड शाफ्ट, यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम साइजेस ऑफ होल एंड शाफ्ट एज वेल एज रिस्पेक्टिव टॉलरेंसेज एज वेल एज फंडामेंटल डेविएशन. तो ये आपको मिल गया मिनिमम होल. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जैसा देखा था. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉलरेंस निकालेंगे, होल टॉलरेंस. अब इसमें ये ऐड कर दिया तो आपको मिल जाता है मैक्सिमम साइज ऑफ होल. ये यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मिनिमम होल प्लस दिस टॉलरेंस इज मैक्सिमम होल, ये आपको मिल जाता है. अब डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ शाफ्ट आपको निकालना है फंडामेंटल डेविएशन, हम लोग अभी आगे निकालेंगे. 50 माइनस दिस यू विल गेट मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट. फिर हम शाफ्ट का टॉलरेंस निकालेंगे एंड मैक्सिमम शाफ्ट माइनस दिस डिस्टेंस यू विल गेट मिनिमम शाफ्ट. सो फ्रेंड्स, नाउ द मैक्सिमम साइज ऑफ होल इज इक्वल टू मिनिमम होल प्लस टॉलरेंस. मिनिमम होल आपको पता है 50 प्लस 0.0249, तो मैक्सिमम होल इज 50.0249. नाउ what we need to do for D type of the shaft, we need to find out the value of fundamental deviation. Now with the help of this particular table we can find out the value of fundamental deviation for a D type of the shaft. यहाँ पे दिख रहा है आपको D दिख रहा है. ओके, उसकी वैल्यू हम लोगों को निकलती है with the help of this formula, -16 into D to the power 0.44. okay, now this minus sign it indicates that this particular deviation is below the basic size. यहाँ पे ये फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है, ये बेसिक साइज के नीचे है, इस वजह से वो माइनस साइन दिए. कई लड़के उसको माइनस प्लस करते हैं, तो इट इज़ एन इंडिकेशन. सो फंडामेंटल डेविएशन इज -16 इंटू डी टू द पावर 0.44. तो वो वैल्यू मिलती है आपको. अगेन फ्रेंड्स रिमेंबर, फंडामेंटल डेविएशन इज ऑलवेज इन माइक्रॉन्स. वैसे ये लॉजिकली समझ में आता है. अब आप सोचिए कि आपका मिनिमम साइज ऑफ होल ये 50 है, 50 है, तो फंडामेंटल डेविएशन, दैट इज फंडामेंटल डेविएशन यानी क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम होल एंड मैक्सिमम शाफ्ट. ये 80 mm का रह सकता है क्या? नो, क्योंकि आपको पता है मिनिमम होल अगर 50 mm का है तो डिफरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट ये 80 mm रह नहीं सकता. बाय डिफॉल्ट इट इज इन माइक्रॉन्स. सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल डेविएशन इन माइक्रॉन्स बाय डिफॉल्ट मिलता है. वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू mm, सो इट इज 0.08 mm. देन मैक्सिमम शाफ्ट, already we see minimum hole minus fundamental deviation 50 minus 0.08, you will get this maximum shaft, that is 49.92 mm. now फिर से हम लोग देखेंगे for shaft having tolerance grade 8. so friends, again we need to find out the value of IT8. ये देखिए आपको IT8 दिख रहा है, उसकी वैल्यू आपको मिलती है 25i. now friends, for shaft having tolerance grade 8 आपको वैल्यू मिलती है 25i. देयरफॉर द शाफ्ट टॉलरेंस इज 0.039. सो द मिनिमम शाफ्ट वी कैन फाइंड आउट मैक्सिमम शाफ्ट माइनस शाफ्ट टॉलरेंस 49.92 माइनस दिस, यू विल गेट मिनिमम शाफ्ट. नाउ फॉर अ मोमेंट अगेन आई डेलिबरेटली रिपीट, हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने एज इट इज होल बेसिस सिस्टम we assume that is the minimum size of hole is a basic size 50. फिर हमने होल टॉलरेंस निकाला with the help of respective tolerance grade. by addition of this 50 plus 0.0 you will get the maximum hole. then depending on the type of shaft, that is D, आपको फंडामेंटल डेविएशन मिलेगा, दैट इज -16 इंटू डी तो 0.44, ये आपको 0.08 मिल गया. फिर हम लोग मैक्सिमम शाफ्ट कैसे निकालेंगे, दिस मिनिमम होल माइनस दिस डिस्टेंस, यू विल गेट मैक्सिमम शाफ्ट. उसके बाद अगेन डिपेंडिंग ऑन शाफ्ट ग्रेड, दैट इज 8, you find out this value 0.039, ये टॉलरेंस होगा शाफ्ट का. दिस माइनस दिस 49.92 माइनस दिस, यू विल गेट मिनिमम शाफ्ट. Already we had discussed that there is a two terms, gauge tolerance and wear allowance.
अब गेज टॉलरेंस इसलिए दिया जाता है बिकॉज it is not possible to obtain the same dimension again and again because of certain inaccuracies. That's why gauge tolerance is provided. It is 10% of the work tolerance. Another term is wear allowance. Wear allowance, it is provided on the go end because this go end is continuously rub against the workpiece. That's why wear allowance is 10% of the gauge tolerance. अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज बताऊंगा. Tolerance is 0.0249 for hole. So gauge tolerance is 10% of this. It will gauge tolerance is 0.00249 for hole. Wear allowance, it is 10% of gauge tolerance. So wear allowance for hole is 0.000249. शाफ्ट के लिए हमने टॉलरेंस ऑलरेडी निकाला है 0.039. गेज टॉलरेंस इज 10% ऑफ दिस 0.0039. वेयर अलाउंस इज 10% ऑफ गेज टॉलरेंस, इट इज 0.00039. नाउ फ्रेंड्स, यू नीड टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर फिगर. ओके, जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे हर प्रॉब्लम में ये फिगर निकालना जरूरी है. राइट, यहाँ पे हमने देखा है दिस इज मिनिमम शाफ्ट, मिनिमम होल, मैक्सिमम शाफ्ट, मिनिमम शाफ्ट. This is go gauge, already we have discussed. This is no go gauge, this is go gauge, this is no go gauge, already we have discussed. Wear allowance is provided on go gauge only, that's why this is wear allowance. ये गेज है, इसका रिस्पेक्टिव गेज टॉलरेंस है. इस नो गो गेज है, यहाँ पे ये गेज टॉलरेंस रहेगा. अगेन दिस इज गो गेज फॉर शाफ्ट, ये वेयर अलाउंस है दिस डिस्टेंस, एंड दिस इज गेज टॉलरेंस. दिस इज नो गो गेज एंड दिस इज गेज टॉलरेंस. फ्रेंड्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. In gauge design, we need to find out the maximum and minimum sizes of go and no go gauge for hole and shaft. जैसा कि आप एक फॉर एग्जांपल में लेता हूँ, ऑलरेडी इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस. ये गो गेज है, ठीक है, दैट इज मिनिमम साइज ऑफ होल. दिस डिस्टेंस इज वियर अलाउंस एंड दिस इज द गेज टॉलरेंस. तो आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ गो गेज एंड मिनिमम साइज ऑफ गो गेज. सो मैक्सिमम साइज ऑफ गो गेज एंड ये निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस मिनिमम होल. तो क्या डिस्टेंस निकलेगा, ये डिस्टेंस निकलेगा दिस मिनिमम होल प्लस दिस वियर अलाउंस प्लस गेज टॉलरेंस. ये आपको डिस्टेंस मिल गया. अब आपको निकालना है मिनिमम साइज ऑफ गो गेज. तो आप क्या करोगे, मिनिमम साइज ऑफ होल प्लस वियर अलाउंस. नाउ नो गो गेज विच इज रेस्टेड ऑन मैक्सिमम होल. तो मैक्सिमम साइज ऑफ नो गो यानी ये रहेगा, ये क्या रहेगा, मैक्सिमम होल प्लस दिस डिस्टेंस दैट इज गेज टॉलरेंस. एंड नो गो इट इज रेस्टेड ऑन मैक्सिमम होल. इज इट एड इट इज. सो फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइजेस ऑफ गो एंड नो गो फॉर शाफ्ट. अब यहाँ पे देखिए दिस इज द मैक्सिमम शाफ्ट, ठीक है. तो मैक्सिमम शाफ्ट एंड दिस इज गो गेज. तो अब यहाँ पे मैक्सिमम साइज कौन सी होंगी गो गेज की फॉर शाफ्ट, दिस इज मैक्सिमम साइज, दिस इज मिनिमम साइज. अब ये मैक्सिमम साइज निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज दिस मैक्सिमम शाफ्ट माइनस दिस डिस्टेंस. तो मैक्सिमम शाफ्ट माइनस दिस डिस्टेंस यानी क्या हो गया, मैक्सिमम शाफ्ट माइनस वियर अलाउंस. ये आपको मिल गई मैक्सिमम साइज ऑफ गो गेज. अब आपको चाहिए मिनिमम साइज ऑफ द गो गेज. ये कैसे निकलेंगी, दैट इज मैक्सिमम शाफ्ट माइनस दिस डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस यानी क्या है, दैट मैक्सिमम शाफ्ट माइनस WA प्लस GT, यानी दिस डिस्टेंस यानी क्या हो गया, WA प्लस GT. ये एडिशन करेंगे, इसको माइनस करेंगे मैक्सिमम शाफ्ट से, देन यू विल गेट द मिनिमम साइज ऑफ गो गेज फॉर शाफ्ट. नाउ दिस इज नो गो गेज, इट इज रेस्टेड ऑन मिनिमम शाफ्ट. अब इसकी मैक्सिमम साइज ये हो गई एंड मिनिमम साइज ये होगी. तो इट इज मैक्सिमम यानी इट इज रेस्टेड ऑन मिनिमम शाफ्ट, दैट्स व्हाई वही साइज होगी. आपको मिनिमम निकालना है तो दिस वन. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम शाफ्ट माइनस दिस डिस्टेंस दैट इज GT. फ्रेंड्स, फाइनली आपको ये फिगर बनाना है और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आप ये फिगर न्यूमेरिकल ये लिखे सॉरी वैल्यूज़, ताकि समझने में आसानी हो. जैसा मिनिमम 50 लिखा है मैंने, वेयर अलाउंस हमने कैलकुलेट किया दैट इज़ 0.00249. गो गेज के लिए गेज टॉलरेंस हमने निकाला 0.00249. अगेन यहाँ पे गेज टॉलरेंस लिखा है, यहाँ पे मैक्सिमम होल आपको पता है दैट इज़ 50.0249. नाउ यहाँ पे देखिए आप नीचे में ये फंडामेंटल डिवीजन मैंने लिखा है. नाउ दिस इज मैक्सिमम शाफ्ट वैल्यूज मैंने लिखी है यहाँ पे 49.92. वेयर अलाउंस मैंने लिखा है 0.0039 गेज टॉलरेंस की वैल्यू, एंड दिस इज गेज टॉलरेंस मिनिमम शाफ्ट. ये ऐसा लिखा तो कैलकुलेशन करने में आसानी होती है. फॉर होल पर्सन शुरू ये ना तू शुरू. हेलो, नाउ फॉर होल go plug gauge. Okay, now these are the two respective sizes. Value of go plug gauge we need to find out with respect to minimum hole. So उसकी maximum size होंगी minimum hole plus wear allowance plus GT. The minimum size of go plug gauge is minimum hole plus wear allowance. ये values मैंने लिखी है. So finally यहाँ पे देखिए तो maximum go plug gauge आपको निकालना पड़ेगा 50.002739 and this is the minimum go gauge. Now this is no go plug gauge. Again the value of no go plug gauge we need to find out with respect to maximum hole.
सो द मैक्सिमम साइज ऑफ नो गो प्लग गेज कैसा आएगा, मैक्सिमम होल प्लस जी टी। द मिनिमम साइज ऑफ नो गो प्लग गेज इट इज मैक्सिमम होल प्लस जीरो। जीरो इसलिए है कि ये नो गो प्लग गेज इज रेस्टेड ऑन मैक्सिमम होल। सो दीज आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू, दैट इज मैक्सिमम नो गो गेज एंड मिनिमम नो गो गेज। नाउ फॉर शाफ्ट गो स्नैप गेज, यहाँ पे आपको मिलेंगी विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम शाफ्ट। तो मैक्सिमम साइज ऑफ गो स्नैप गेजेस आपको कैसा मिलेगा, मैक्सिमम शाफ्ट माइनस वियर अलाउंस, ये आपको मैक्सिमम साइज मिलेगी। तो फाइंड आउट मिनिमम साइज ऑफ गो स्नैप गेज, मैक्सिमम शाफ्ट माइनस एडिशन ऑफ डब्ल्यू प्लस जी टी, ये आपको वैल्यू मिल गई। सो द मैक्सिमम गो स्नैप गेज इज दिस वन, मिनिमम गो स्नैप गेज इज दिस वन। नाउ नो गो स्नैप गेज विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम शाफ्ट या मिनिमम शाफ्ट, to find out the maximum size of no go snap gauge as it is rested on minimum shaft, that's why it is 0, and to find out the minimum size of no go snap gauge is minimum shaft minus gt, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे नीचे में, that is maximum no go snap gauge वो value and this is minimum no go snap gauge, this value, okay।